afternoon. We start with the latest we're tracking in the Gyanvapi case. The Allahabad High Court, remember, will be taking up the case for hearing at 3:30 p.m. in a short while from now. The High Court yesterday, in fact, extended the stay on the survey of the Gyanvapi mosque premises by the ASI by another day. The stay, remember, was initially ordered by the Supreme Court till the 26th of July, to be precise, till 5 p.m. on the 26th. The ASI has told the Supreme Court in an affidavit that the survey won't cause any damage to the structure. This was a submission which, by the way, was made to the Allahabad High Court, not the top court. I beg your pardon. Today, the Muslim side will be submitting its response to the ASI affidavit. So yesterday is when ASI submitted an affidavit in the Allahabad High Court saying that none of the structure will see any sort of a damage. Only a survey, merely a survey, will be conducted on the premises. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि जो भी वो काम वहाँ करने जा रहे हैं उससे स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। और आज जो अंजुमन इंतजामिया के वकील हैं उन्होंने कोर्ट से कुछ समय मांगा इस एफिडेविट को पढ़ के रिस्पॉन्ड करने के लिए, और कल दोबारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3:30 बजे रखी है। तब तक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरिम ऑर्डर है उसको कंटिन्यू रखने का आदेश पारित किया है। Well, as we keep up with what transpires once again in the Allahabad High Court, let's quickly bring these exclusive visuals for our viewers. Now, remember, the debate is all about whether or not an ASI survey should be allowed. But why have we reached this particular junction as far as this entire case is concerned? Because the Hindu side claims once here stood a temple and the remains of the same can only be found out via an ASI survey. And those are the visuals that we're talking about. A leg of, I beg your pardon, the survey, of course, remains of an ideal are something that are highlighted very, very clearly in this particular visual of the very Gyanvapi mosque premises wherein an ASI survey is being demanded. But this is what has been found out during the survey, and the Hindu side is citing these kind of evidences and pressing for its case wherein it's demanding that a survey must be carried out, it must be allowed. But these remains, viewers, very, very integral to the ongoing debate. This is a leg of a broken idol, as is being claimed by the Hindu side as well. This is the evidence that they're relying on in batting and pitching for an ASI survey. Now, remember, the hearing is going to resume close to 3:30 p.m. and perhaps these kind of evidence is also being put out by the Hindu side. But to get into the details, that's the breaking news update. We keep up with those exclusive visuals as well. The truth that Gyanvapi, perhaps the history hides 10 pieces of Gyanvapi's history, those visuals that Times Now has exclusively accessed for you, wherein, pieces of a broken leg have been highlighted, and these are the visuals that the Hindu side is time and again relying on and saying that this is why a survey, an ASI survey, must be carried out and is the need of the hour. So this is what the Hindu side claims is being hidden. The truth that they say is very, very integral to the Hindu faith, to the Hindu Asta, and that's why an ASI survey must be conducted. Those are the visuals we're talking about. This particular idol that's found inside Gyanvapi. Remember, the Wuzu Khana is going to remain sealed, so that's out of question for sure. But as far as these remains are concerned, and these particular evidences that the Hindu side is really relying on in highlighting time and again that this is why we need an ASI survey to determine whether or not there were remains of a temple that once stood here. Let's quickly talk about more and more exclusive details that we continue to highlight. Now, remember, as we keep up with these visuals, we're also talking about the hidden truth. The Hindu side says all of this has been concealed. It has been concealed by certain Mughal rulers, remains that have been found during a survey that we continue to highlight for you. This is the leg of a broken idol, as is being claimed. Whether or not this has also been a submission is something that we're going to find out, but these are inside visuals of what lies within the Gyanvapi premises, which is being claimed has been hidden over the course of history. This is another piece of exclusive visual that Times Now has managed to access for you, and the timing, of course, very, very crucial, because remember, the Hindu side this time
around came in with the submissions of the ASI that said no damage will be caused to the structure, only ASI survey, and that's about it. Mr. Arya is with us. Mr. Arya, what do you make of these visuals? Can you help us understand first up what do we make of these visuals? ये जो भी evidence है, जो तस्वीरें बार-बार हम बाहर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये हमें क्या बताता है सर? सोहनलाल आर्य जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ जी, बताइए, हमें इन तस्वीरों के बारे में बताइए सर। हाँ, फिर से एक प्रश्न फिर से करें जी। ये तस्वीरें कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी का जो प्रेमाइसेस है वहां से पाई गई हैं और इसीलिए एएसआई सर्वे बहुत बहुत जरूरी है इस समय पे। पर इन तस्वीरों के बारे में हमें बताइए। बताया जा रहा है कि ये एक लेग है, टांग है ये किसी ब्रोकन आइडल की। तो हम क्या, व्हाट डू वी मेक ऑफ दिस सर? हम इन तस्वीरों का क्या बना सकते हैं फिलहाल? हमने सर्वे के दौरान जो देखा उसमें खास तौर से ये 2.5 फीट की हमारी ये मूर्तियां हैं, हमारे किसी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अब भ्रंश तोड़ कर टूटी हुई मूर्तियां हैं और देख करके, और यह आज भी अभी भी नमाज पढ़ते समय सीढ़ियों पर जाते हुए ये बगल में नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है। आश्चर्य है कि पुलिसकर्मी जो ड्यूटी दे रहे हैं वह भी इसे 2 फीट की दूरी पर खड़े होकर के ड्यूटी दिया करते हैं। ये मूर्तियां हैं जो साक्षात हैं। हमें ऐसी मूर्तियां ही नहीं, वह सर्वे के दौरान हम हर पल हर क्षण थे। यहां तक कि मुस्लिम तहखानों में भी गए। मुस्लिम तहखानों में उमा जो सामने दिखाई दे रहा है, ये उमा महेश्वर की मूर्ति है, उमा महेश्वर की मूर्ति है। और इसे अधिकतर साक्ष्य जो छेनी हथौड़ी से तोड़ छील करके हिंदू साक्ष्यों को छिपाने का प्रयास किया गया है। इतना ही नहीं, व्हाइट सीमेंट से पूरा का पूरा जो हमारे साक्ष्य जो है, हमारी देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, उनके जो सब है, उनको जो है मतलब लगा करके साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास एक जगह नहीं 50 जगह किया गया है। और अधिकतर जगहों में जो है छेनी हथौड़ी से लेकर के पूरा का पूरा जो है हमारे तहखानों में किया गया है। हमारे और तो और जो हमारे जब तहखानों में जब प्रवेश किए तो जो श्लोक जो है संस्कृत जो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, इस श्लोक से देवनागरी ब्राह्मी लिपि में है, हम लोग इस पर समझ में नहीं आया। लेकिन एक ताखा होता है जिसमें दीप जला जाता है, वहां भी शिवलिंग पाए गए। और उसी में ही एक चित्र था जो कई वर्षों मुस्लिम तहखानों को खोला गया कि मां अन्नपूर्णा शंकर भगवान को भिक्षा दे रही हैं। आश्चर्य है कि हमारे मूल मुस्लिम तहखानों में सारे साक्ष्य सब दिखाई दे रहे हैं। एक तहखाने की बात कर रहे हैं, अभी दूसरे तहखानों के बीच में जब जाएं तो ये लगता है एक गड्ढा 2 फीट का खोद करके, तत्काल गड्ढा खोद करके जो है हमारे टूटे फूटे मूर्तियों को जो है उसमें जो है। तो आप कह रहे हैं ऐसी और मूर्तियां हैं और ऐसा और सच है जिसको छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है। सोहनलाल जी बने रहिए हमारे साथ, हम चौथे एक्सक्लूसिव पे जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ एक्सक्लूसिव। You've seen 2 pieces of evidence that we have so far put out. Now look at the third one. This could be the most exclusive piece of evidence. Now Sohanlal ji of course can come in on this, but Sohanlal ji, we're also being told that experts believe that this is the Vara incarnation of Lord Vishnu. इसके बारे में बताइए हमें कि ऐसा क्यों मानते हैं एक्सपर्ट्स, और ये जो ASI सर्वे किया जाएगा, अगर ये किया जाएगा तो ऐसी तस्वीरें जो बाहर निकल के आएंगी, ये इस केस में कैसे महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण। यह व्यास जी के तहखाने में थी। व्यास जी का तहखाना, इससे जो नंदी है यह 20 फीट की दूरी है। 20 फीट की दूरी पर यह नंदी है बड़ा। अब सोच लीजिए कि जो मुस्लिम वर्ग जो है, ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद जो है, ये जो बुत नहीं मानते हैं और ऐसे में बुत मिलना, वो भी बराह का मिलना, हैरत अंगेज की बात होती है। और दूसरी चीज खास तौर से ये है, खास तौर से दूसरी चीज ये है। सोहनलाल जी आइए हमें यहाँ बताइए, इन तस्वीरों को देखिए और हमें एग्जैक्टली बताइए आप कि इन तस्वीरों से आप क्या बनाते हैं और ये कहाँ पाई गई हैं, क्या तस्वीरें हैं? आप इस केस के बारे में पूरी तरह से जानते हैं तो हमें समझाइए। ये वराह की मूर्ति है व्यास जी के तहखाने में। ये मंदिर के शिखर है, ये देखिए, ये मंदिर के कलश है, कमल के पुष्प, ये मंदिर के शिखर जो ऊपर ही होते हैं मंदिर, ये मंदिर के शिखर है। ये देख रही है मंदिर का एक टुकड़ा, दूसरा, ये फिर तीसरा, ऊपर जो है उस पर जो है
जो उसमें त्रिशूल होते हैं केवल, ये उसका ये टुकड़े टूटे हुए जो है, कहने का मतलब कि एक नहीं सैकड़ों इस टुकड़े मिलेंगे। और ये वराह की मूर्ति है जो है व्यास जी के तहखाने में है, और ऐसी एक नहीं मूर्तियां, कई मूर्तियां। ये वराह की मूर्ति, और इसकी लोकेशन क्या है सोहनलाल जी आपके मुताबिक? व्यास जी के तहखाने में, और ये लोकेशन जो नंदी है, ये व्यास जी के तहखाने से 20 फीट की दूरी पर ये व्यास जी का तहखाना है। ओके सोहनलाल जी बने रहिए। ये दिस इज द नेक्स्ट पिक्चर दैट वी पुटिंग आउट फॉर व्यूअर्स। ये लोटस सिंबल है, पहले भी इसकी बात हो चुकी है कि वॉल पे, दीवारों पे तो ये दिखाई ही है, और ये तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में जानकारी ये ब्रह्म कमल है, ये ब्रह्म कमल जो है खास तौर से, और ये देखिए पूरी की पूरी ये 24 फीट है, ये 24 फीट की दीवार ब्रह्म कमल। इस इस्लाम में ब्रह्म कमल का जो कहीं भी जिक्र नहीं होता है। ये हमारे हिंदू साक्ष्य, हमारी गौरवमयी शानदार संस्कृति विरासत का ये प्रकटीकरण है। और देखिए ये कभी, और यही तक नहीं, आगे इसके और बढ़िए तो पत्थर के त्रिशूल, 35 फीट लंबे त्रिशूल है पत्थर के, एक दो नहीं। और आगे शंख, चक्र, गदा, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह, सारे के सारे साक्ष्य मौजूद हैं। एक दो नहीं बल्कि इसकी कतारें हैं। तो आप कह रहे हैं ऐसे बहुत चिन्ह हैं, और मीटर लंबे, मतलब दीवारों पे आप देख सकते हैं। तो ये सच मना नहीं किया जा सकता आपके मुताबिक? हमारी कहने का मतलब कि इस्लाम में बताइए, हमारे मंदिर की दीवारें हैं, हमारे भव्य मंदिर की जो 8 अप्रैल 1669 में औरंगजेब के द्वारा जो तोड़ी गई, ये उनके बचे हुए ये सोहनलाल जी, अब 4 तस्वीरें, 4-5 एक्सक्लूसिव जो हमने दिखाए हैं, वो हमने एक साथ जोड़ दिए हैं अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक एक करके तस्वीरों की बात करते हैं। ये हमारे मंदिर के, ये मंदिर के हमारे थोड़ी, ये पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी, ये साफ दिखाई देता है जो है। ये देखिए शिखर, ये मंदिर के हैं, और यहाँ पर यही ये देखिए, ये जैसे आ रहा मंदिर का शिखर, यही के बगल में बाएं में जो मां श्रृंगार गौरी का प्रवेश द्वार हुआ करता है, जिसके और जो महिलाएं हैं पेटिशनर्स इस केस में, उन्होंने इसी दीवार की बात की थी, यहीं पे पूजा करने का उनको अधिकार चाहिए। इनसे 10-15 फीट इधर जो इसका मलबा गिरा था 8 अप्रैल 1669 में औरंगजेब को तोपों के द्वारा जो हमारा ध्वंस आ रहा तोड़ा गया था, उसके मलबे गिरे उसके मलबे गिरे तो काफी 24.5 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा हुआ करता था। आज लगभग 4 फीट ऊंचा है। उसमें एक किनारे मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा मान करके ड्योढ़ी की पूजा की जाती है, जबकि मां श्रृंगार गौरी अंदर है जी। और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो कलश का पैटर्न है, ये किस दीवार पे, और ये इधर से कितना पास है, कहां पे है इसका? ये बगल में ही उत्तर दिशा की ओर है। ऐसे काफी ये देखिए, खास तौर से ये सारे साक्ष्य जो है कई जगह ऐसे हैं जो मिटाने का प्रयास किया गया, व्हाइट सीमेंट से उसको बराबर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ छुप गए हैं। यहां पर जैसे ये देखिए आला, मतलब जैसे पूरा घरों में, पुराने मकानों में या मंदिरों में यहाँ दिया रखा जाता था भगवान के देवी, ये है ये आला है ना। ये देखिए साक्षी को तोड़ने का प्रयास किया गया है। साक्षी को हमारे यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमाएं रही होंगी, छेनी से तोड़ के ऐसा कम से कम 2500 फीट ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो है, जो कि आज भी देखा जा सकता है। हम स्वयं देखे सर्वे के दौरान, जो इसके पहले 16 मई 2022 को हुआ था, जिसमें हमने कहा था कि बाबा मिल गए, है ना। उसमें लोग कौन से बाबा तभी बाहर निकल के आए, इसीलिए पूरा सर्वे करना बहुत जरूरी है जी। तो सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। और दूसरी चीज, आखिर ज्ञानवापी का सच क्या है? सच यही है कि 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने हमारे भव्य मंदिर को ध्वंस किया जी। ये तस्वीरें देखिए सोहनलाल जी, ये श्लोक है, इसके बारे में आप हमें जानकारी दे सकते हैं? ये मुस्लिम तहखाना है, जिसमें ब्राह्मी लिपि में या नागरी शैली में कुछ लिखा हुआ है। पहले जब हम लोग पहली बार प्रवेश किए और सामने देखते ही दंग रह गए, हम लोग हैरत में पड़ गए। ये पूरा लिखा हुआ है। हमारे जो विद्वान, इतिहासकार विद्वान ब्राह्मी लिपि का है या नागरी शैली के, उसका यह निराकरण कर सकते कि यह क्या लिखा हुआ है। और यहीं पर जो है ठीक बगल में मां अन्नपूर्णा का एक चित्र था। मां अन्नपूर्णा शंकर भगवान को भिक्षा दे रही हैं। आश्चर्य कि मुस्लिम तहखानों में वह चित्र जो वर्षों बाद खोला गया, हमारे वकील कमीशन, इन चिन्हों को, इन श्लोकों को, ये जो सिंबल्स हैं, ये जो बाहर निकल के आई हैं तस्वीरें, क्या इनको मिटाने की भी कोशिश की गई है आपके मुताबिक? हम लोग जब सर्वे कमीशन हुआ, इन सब का चूंकि 4 वादी महिलाएं काशी की हैं, मैं हिंदू पक्ष का पैरोकार होने के चीफ हमको माननीय न्यायालय के जो जिला जज डॉक्टर A.K. विश्वेश जी को दिया गया, उसका भी हमने गहरा अध्ययन किया। आज भी यथावत तालाबंद है, लेकिन ताली मुस्लिम समाज के पास है जी। तो ये बहुत सारी तस्वीरें, और आपके मुताबिक इतना सारा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है।
कलश की बात करें, कमल की बात करें, श्लोकों की बात करें, ये लाल स्टोन देखिए, रेड ये जो स्टोन है, इसका ये दरवाजा, ये श्रृंगार गौरी का श्रृंगार गौरी जो है प्रारंभिक द्वार था। माँ श्रृंगार गौरी यानी शक्ति की देवी, यानी माँ पार्वती की देवी, उनसे अनुमति लेकर विश्वेश्वर महादेव जो अंदर यानी ज्योतिर्लिंग है उनका दर्शन लोग करते हैं। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर से, चौड़े चौड़े पत्थर से ये रास्ता बंद कर दिया गया। आज भी दिखा, ये पश्चिमी दीवार है आपका, ये पश्चिमी दीवार है। ये देखिए सामने रास्ता बंद है, ये रास्ता बंद, बड़े बड़े पत्थरों से ये रास्ता बंद किया गया है। और ये रास्ता कहाँ को जाता है? ये वही अंदर गर्भगृह में जाता है। अच्छा। हम लोग जब ऊपर सर्वे में गए थे अपनी आंखों, जब हम लोग इस जा करके इस तरह से खोखला अंदर था, हम लोग उसमें सब ये कहे कि हम लोग अंदर जाना चाहते हैं, कहे नहीं इसकी परमिशन नहीं, आप लोग यहाँ केवल जो है। और हमारे आदरणीय माननीय हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी के सद प्रयासों से यह सब संपन्न हो सका। ये सब देखिए जो पश्चिमी दीवार सब जो है ये गिरे हुए मलबे हैं उस भव्य मंदिर के, ये मलबे हैं और लगभग 15 फीट तक मलबे हैं। वहीं एक किनारे जो है माँ श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किया जाता है। जी, तो ये पश्चिमी दीवार है, वेस्टर्न वॉल है ये। और इसी से जो आप कह रहे हैं कि एविडेंस की शुरुआत हुई थी, यहीं से स्टोरी शुरू हुई थी, यहीं से कहानी शुरू हुई थी। यहीं पे जो आप कह रहे हैं कि मलबा गिरा हुआ है, यहाँ से चिन्ह उठा के लोगों ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ था। हमने 1995 में विवाद दाखिल किया था, पहली बार हम वादी बने। श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार वह विश्वेश्वर महादेव में ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के सामने पहली बार बात दाखिल किया, सुनवाई भी हुई। और 18 अप्रैल 1996 में भी हमने सर्वे भी कराया, लेकिन उसके बाद मुलायम की सरकार के प्रताड़ित किया जाने लगा और फिर तारीख एक साल पर दिया जाना। अंत में थक हार के हमारे विष्णु शंकर जैन। सोहनलाल जी, अगर हम इन तस्वीरों की बात करें और आप कह रहे हैं कि ये प्रूफ है, आप कह रहे हैं कि ये प्रूफ है, तो मुस्लिम साइड को क्या आप कहेंगे कि वो जो बोल रहे हैं कि नहीं ये सच नहीं है, इस प्रूफ के हाथ में आते ही ये प्रूफ जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे उनका आर्ग्यूमेंट कैसे खत्म होता है? मुस्लिम समाज भयभीत है कि यदि सर्वे हुआ तो उनके सारे साक्ष्य देश के सामने, प्रदेश के सामने, 140 करोड़ लोगों के सामने साक्ष्य आ जाएंगे। इसीलिए हुआ भयभीत सर्वे कराने में बाधा डालने। ये श्री राम जन्मभूमि की तरफ, मैं भी उसमें श्री राम जन्मभूमि में संगठन में था, उसमें भी यह बाधा कार्य किया करते थे, लेकिन जैसे ही रोड़ा अटकाते थे तुरंत हम समझते थे यहाँ जरूर कुछ है। क्या कहना है इस पत्ते के बारे में, कलश के बारे में, होगा बताने, श्लोकों के बारे में? अभी तक वो क्या कह रहे हैं कि ये कहां से आया? कहते हैं कि ये कहीं ये मंदिर कोई चिन्ह नहीं है। सर्वे मिलने के बाद पूरा का पूरा जो है जो सर्वे कमीशन जो थे, कमीशन सर्वे जो वकील कमिश्नर माननीय न्यायालय को दिए, कहे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जब हमने ये कहा था कि बाबा मिल गए, कहे वो कुछ नहीं मिला। तो कहने का मतलब हर बात में वो झूठ बोलते हैं। इसके बारे में हम क्या कहें जो है। और तो और मैडम कुछ आगे बढ़ के बोलना चाहते हैं जी। मुस्लिम समाज ये कहता है कि फुहारा है जी। हम कहते हैं शिवलिंग है। यदि सर्वे हुआ तो इन दीवार, अच्छा दूसरी चीज, सर्वे हुआ इन दीवालों का तो कम से कम 2000 साल, उसकी आयु 2000 साल होगी। पहले हम इस तस्वीर को लेके आपके पास नहीं आ पाए थे सोहनलाल जी। इस आइडल, इस मूर्ति के बारे में बताइए। ये उमा महेश्वर की मूर्ति है। अच्छा। ये उमा है और ये महेश्वर है ना। ये देखिए छेनी से ये मतलब छील करके, मतलब इस तरह करके ये देखिए पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे। ये छेनी और हथौड़ी से छील के इसको जो है साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया है। ये सामने, यही मैं आपको बोल रही थी कि इन सिंबल्स को मिटाने का भी प्रयास किया गया है। और ये उसी मूर्ति का पाव है। नहीं, ये मूर्ति तो ये मूर्ति जो है देवताओं, देवी देवताओं को, ये करीब ये 3 फीट की मूर्ति है ये तो। अच्छा। हाँ, और सीढ़ी के पास जमीन में भी पड़ी हुई है। आज भी हम लोग पहली बार जब देखे तो हैरत हो गए। हमको लगा कि क्या हो गया इस देश को और क्या हो गया हम लोग को कि यहाँ मूर्तियां पड़ी, प्रशासन के लोग वहीं खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं। एएसआई सर्वे की अगर परमिशन दी भी गई सोहनलाल जी, तो वजू खाना जो एरिया वो सील्ड रहेगा अभी तो क्या उसमें कोई आपत्ति आएगी सर्वे में कि अभी बहुत प्रूफ है, बहुत कुछ है देखने के लिए, उसके आसपास तो जरूरत नहीं पड़ेगी? सैकड़ों प्रमाण हैं, एक नहीं सैकड़ों, पग पग पर प्रमाण है। अगर वजू खाने के छोड़ दिया, वो फुहारा कह रहे हैं, हम शिवलिंग कह रहे हैं, तो वही तो हम कहने जा रहे हैं कि ऊपर जो 3 गुंबद है उनके जी। 8 अप्रैल 1669 में औरंगजेब जो है के फरमान से तोड़ा गया। मासिराय आलमगीर पृष्ठ नंबर 123 पर लिखा हुआ है। क्या इसको मुस्लिम समाज नहीं मानते हैं? और उसके नीचे
3 शिखर, हिंदू के शिखर, उस भव्य मंदिर का मंदिर जो तोड़ा गया, उस शिखर के नीचे जो बीच वाला जो गुंबद शिखर है, उसके नीचे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके नीचे वही ज्योतिर्लिंग है। जी, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट की बात करें तो मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि एएसआई को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। अब एएसआई ने एफिडेविट सबमिट कर दिया कि कोई डैमेज और कोई एक्सकवेशन नहीं होगी, सिर्फ सर्वे कैरी आउट किया जाएगा। ये तस्वीरें फिर से दिखाते हैं अपने दर्शकों को। सोहनलाल जी, आप कह रहे हैं ये त्रिशूल है। हाँ, ये मंदिर का शिखर होता है, ये उसका टुकड़े टुकड़े में गोलाकार होता है, ये कमल की तरह होता है पत्थर, फिर उसके ऊपर दूसरा पत्थर, फिर ये ऊपर से ये लंबा वाला है ना, इसके ऊपर लंबा, जिसे अभी भी स्थापित है। हाँ, ये मतलब ऐसे कमरे में रखा हुआ है, ये मतलब जो है खाने में जो है हमारे जो मंदिर के जो ऊपर शिखर होते हैं, टुकड़े टुकड़े गोलाकार टुकड़े में होता है, कई टुकड़े में होते हुए तो ऊपर जाता है, उसका ये हिस्सा है। अच्छा, और इससे के बारे में हाँ, ये व्यास जी के लोकेशन भी थोड़ी इसके बारे में जानकारी। ये जो है वराह की मूर्ति, वराह इस्लाम में नहीं हुआ करती जी। हम तो उसका ये सारे प्रश्नों का सवाल भी देना पड़ेगा मुस्लिम पक्ष को कि ये अगर आखिर ये सिंबल्स आए, मूर्तियां आई, तो ये कहां से आए? अगर मस्जिद आप मानते हैं जी, तो वराह की मूर्ति कहां से? जी। और ये कमल के पुष्प जो है, तो वेस्टर्न वॉल की बात करें तो बहुत सारा एविडेंस है, बहुत सारा प्रूफ है। अंदर सीढ़ियों के पास बात करें तो भी मूर्तियां, और आप जब वहां नमाज पढ़ते हैं, उसके कुछ सेकंड हम चाहते हैं, जहां नमाज पढ़ते हैं वहां पंखे से कैलेंडर हिलने लगा, तो वहां मक्का मदीना का फोटो था। हम लोग सम्मान सहित, चूंकि वहां नंगे पांव गए थे, इसलिए कि भाई आराध्य स्थल उनका भी है, हमारा भी उतना ही सम्मान है। हम उनको लेकर के, हमने एजाज भाई जो वहां के सचिव हैं मस्जिद के, हमको उनको हाथों में दिया, लेकिन जैसे ही उसको हटाए, वहां जो 2x2 के पत्थर ओम लिखा हुआ था, यानी हमारे हिंदू साक्ष्यों को छिपाने का प्रयास जी। और वहीं पर जो है हमारे वकील कमिश्नर जो चल रहे थे, एक चटाई था जिस पर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं और लोग पढ़वाते हैं, जैसे हटा तो इसको हटाए, देखे तो स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ था। मतलब जो 2x2 का पत्थर था, कहीं से उठा कर ला के यहाँ लगाया गया, यानी हमारे हिंदू धर्म का ये अपमान। जी, तो आप कह रहे हैं कि स्वस्तिक नीचे पैर, पैर नो तले कैसे पहुंचे? जी। आखिर और तो और दूसरी 14 फीट की ये खंभे, 2 फीट के खंभे, उन खंभों पर चारों कोने पर, खंभे के 4 कोने होते हैं, 14 फीट के बड़ी बड़ी खंभे, यहां पर घंटी जंजीर, घंटी जंजीर, घंटी जंजीर, मतलब 14 फीट में जंजीर, फिर यहां जंजीर, ऐसे 4-5 खंभे, और वह उस भव्य मंदिर के। कितनी मूर्तियां, कितने चिन्ह, कितने श्लोक, कितना कुछ है जो हिंदू आस्था को दर्शाता है यहाँ पे, और ये सब नकारा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से। लेट्स सी हाउ दिस प्लेज आउट। सोहनलाल जी, आज कुछ ही मिनटों में हम देखेंगे सुनवाई फिर से शुरू हो जाएगी। वील कम बैक टू यू। लेट्स आल्सो इन द मीनवाइल क्विकली शिफ्ट आवर फोकस टू अनदर ब्रेकिंग न्यूज।